Hi there. So we're continuing with July, okay, and right now we are going to start with Gemini. Gemini moon sign, Gemini ascendant, Mithun Lagan, Mithun Rashi. So the first thing we're going to start with is the archetype. What archetype, what personality, what lesson are you going through for the month of Gemini overall, for the month of July, sorry. I'm so sorry. For the month of July overall. Oh my goodness, my ring. Gemini moon sign, Gemini ascendant. What are you going through? Anima Mundi. I will have to look at my book for this. I have no idea what this means. No idea. I am human too. I can forget. And I can also not know what it means. Let's try to see from the photograph. What do you see? Here we go. You see that? Okay. We see a man here in meditative state. And there's a red, I would say, diamond on his face. There's an eye here, some signs of the planets, etc. And he's inside of a star. It's inside of a star. It looks like a cosmic connection. Okay. I do know that animus is used in Jungian psychotherapy. What the definition the creator of the archetypes deck has used, I'm unsure about. Let's get the book. Let's get the book. Let's think about it. Okay. The archetypes book. Let's see. Anima. Here you go. It's in the segment of the initiations. Page 225. 221. Is there a 225? 223? 223? Okay, here it is. Anima Mundi epitomizes the principle accept all, reject none. Sab kuch accept kar lo, kuch bhi reject mat karo. Simply put, it is the living soul of the world in all its multifaceted, multidimensional layers. When we look at this, so obviously soul ka to concept aa hi raha hai, because you do see a man who is in the state of meditation, right? And it kind of looks like the cosmos, क्योंकि वो star में है, and this could be like the rest of the universe with the planets here. Multidimensional layers bonded together by loving cosmic forces. Diversity is celebrated, multiplicity is honored. Okay, so for Gemini, बहुत सारी diversity होगी जो आप celebrate करेंगे, multiplicity होगा, many things will be going on, कुछ भी आप deny नहीं करोगे, बहुत ही loving, embracing वाली energy होगी आपकी for the month of July. Constructs of separation dissipate into the wonderful mess of shared consciousness. तो आपको वो separation वाली feeling नहीं होगी. तो अगर हम spirituality की बात करते हैं, spirituality में हमारा aim ये रहता है कि हम सारी चीज़ों को एक ही तरीके से मिला के देखते हैं. वी लुक एट इट विद लव. वी डोंट लुक एट थिंग्स एज बीइंग डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम अस. ओके, वननेस का जो कॉन्सेप्ट है, वननेस. तो यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे ही आध्यात्मिक हो जाओगे. मे बी लाइक फॉर मैनी मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले शायद आप हो भी जाओगे, बट डेफिनेटली आप खिच नहीं करोगे. आप डिफरेंसेस और ट्रबल्स में नहीं जाओगे कि कौन क्या बोल रहा है, वो अलग है मुझसे, मेरी उसकी थिंकिंग नहीं मिलती, मेरी उसकी एनर्जी मैच नहीं होती, मेरी उसकी वाइब मैच नहीं होती. आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे. ओके, देन वी हैव Anima Mundi is a link between the literal and the imaginal, the rational and the mythic. It is a connective fiber that makes life meaningful. Okay, this card indicates an initiation on the level of the soul. You will awaken the unique light within and witness how this light contributes to the radiance of the entire universe. अब या तो अगर आप बहुत ही हाई लेवल पे आप पहुंच गए हैं अपने मेडिटेशन वगैरह में, नहीं पहुंचे हैं तो कर लो. जुलाई इज़ अ फैंटास्टिक मंथ फॉर यू. अगर आप अपने सोल को पहचानना चाहते हैं,
हु एम आई एम दैट, राइट शिवोहम। अगर आप अपने सोल को पहचानना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट मंथ। लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं या उस लेवल पे जाना नहीं चाहते हैं, द बेयर मिनिमम दैट विल हैपन इज़ कि आप अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करके अपने आप को पहचानना शुरू करोगे, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। यू गोना से कि आई एम दिस, जो मेरे आसपास चीज़ें हैं जो मुझसे अलग है, जो शायद मेरे साथ रेजोनेट नहीं करती, वो भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। मैं भी वो हूँ, वो भी मैं हूँ। You will sense yourself as a critical note in the cosmic orchestra. Destiny is altered as you hear the enchanted melody of all living things. यहाँ पे देख लेते हैं. The embrace of Anima Mundi is available anytime, anywhere, to anyone, day or night, rich or poor. Process of unveiling our resistance to its love. Okay, so very heart chakra centered. It is the energy behind the world card in the tarot deck. Energy behind the world card. तो जो world card होता है, it is the last major arcana, and major arcana हमारे major lessons होते हैं. जब हम world card पे पहुंच जाते हैं, then we are in completion. Let me try to find, if I can try to find it as soon as possible for you. It is the card of completion, कि हमने सब कुछ achieve कर लिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है achieve करने के लिए. That is the world card. Okay, so behind that is a lot of detachment. Okay, क्योंकि जब आपने सब कुछ पा लिया, आपके पास और फिर desires रहते ही नहीं है. तभी यू नो आई मीन कई लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं, नहीं डालते हैं टैरो रीडिंग में, पर अगर आप डालते हैं तो फिर शनि का ही कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड. ओके, आई विल जस्ट शो इट टू यू. इट्स रियली ब्यूटीफुल. होल्ड ऑन, अ लिटिल पेशेंस. आई एम न्यू टू दिस, सॉरी. Come on, world card. Come on, world card. Where are you? There we go. The world card is at the complete end. This is the world card. Okay. World card mein you see this woman and she's dancing. She's dancing. And she's surrounded by a wreath. ये celebration का होता है, completeness का हो गया. आप full circle आ गए हो अपनी life में और कुछ achieve करने के लिए बचा नहीं है. राइट, एंड यहाँ पे आपके जो 4 गार्डियन एंजल्स है, दे आर लुकिंग ओवर यू. जब आप ऐसे स्टेट पे पहुँच जाते हैं तो फिर अटैचमेंट नहीं रहती है किसी भी चीज़ की. चाहते अगर तो फिर इनको डायमंड्स एंड इन सब चीज़ों में सजा सकते थे, पर नहीं किया है, बिकॉज सब कुछ होते हुए भी अब मन नहीं है कुछ भी पाने का. एंड दैट इज़ द इंटायर आइडिया यहाँ पे. दैट इज़ द इंटायर आइडिया यहाँ पे एनिमा मंडाई में, राइट, कि आपने अगर अपने आप को पहचान लिया तो और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं फील होगी. सो लेट्स मूव ऑन. दैट इज़ योर जनरल एनर्जी. इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी. कंग्रेचुलेशंस जेमिनी. और हम एक एक करके फ्रैगमेंट्स में देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होगा. Rashi Mithun Lagam, July 2025. Let's start with health, wealth. Let's go wealth, career, या फिर profession, and at the end we'll have relationships. Okay. Alright. Bottom of the deck में star card आया है, जो काफ़ी सारी हीलिंग का टाइम दिखा रहा है, राइट. मैं स्टार कार्ड को भी, मतलब देयर आर मेनी मेजर अरकाना कार्ड जो स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करते हैं. यहाँ पे भी मैं समझ सकती हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का है, हीलिंग का है, सेल्फ हीलिंग का भी है, दूसरों की भी हीलिंग का है. सेल्फ हीलिंग एक्चुअली ओरिजिनल डेक में जो ये वाटर है वो ये लेडी अपने ऊपर पोर करती है, एंड दी अदर वन बाकी चीज़ों को नरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए. Okay, so that is the situation that you will be in. अपनी खुद की हीलिंग और दूसरों की हीलिंग, राइट. हेल्थ में हम देखें, there is going to be some success. If you have been unwell,
तो अब फाइनली आप जाके अच्छे होंगे। अगर आपने एक टारगेट रखा था अपने हेल्थ के लिए कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है, इतने मसल मास बनाना है, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इट। प्लस बाकी लोग भी जो है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्ड वर्क के ऊपर। दिस इज़ सुपर नाइस, सुपर पॉजिटिव, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। देन वी हैव वेल्थ। अब वेल्थ को लेके आई सी कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने साइलेंस में, अपने चुप्पी में है। मे बी यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि फॉरेन ट्रैवल वुड बी अ गुड आइडिया, बट यू आर डिसाइडिंग नाउ टू डू योर इनर वर्क, राइट। यहाँ पे हमारा एनिमा मंडाई आ गया। ओके, यू आर डिसाइडिंग टू डू योर इनर वर्क। आप अपने आप को खुद से ही गाइड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप शायद दूसरों को भी कुछ ज़्यादा ही गाइड करके उनको परेशान कर भी देंगे। ओके, ओनली गिव एडवाइस इफ इट इज़ नेसेसरी। वेल्थ वाइज दिस डजंट सीम, यू नो, इट्स नॉट अ बैड कार्ड, इज़ नॉट अ फैंटास्टिक कार्ड, पर इट इज़ अ कार्ड जो मुझे दिखा रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ है, ट्रबल्स भी है, तो आप अपने आप से ही हैंडल करना चाहते हैं। यू डोंट वांट एनी इंटरफियरेंस हियर। यू विल बी एबल टू फाइंड योर वे दो, बट काफ़ी लोनली सा आपका ये जर्नी लग रहा है। एंड व्हेन वी फील लोनली, हमारे जो हेड है वो नीचे स्लाउच करता है, हमारे शोल्डर स्लाउच करने शुरू हो जाते हैं। इट्स टू मच बर्डन एंड टेंशन। करियर एंड प्रोफेशन को लेके आई एम सीइंग नैरो माइंडेडनेस, ईगो, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, मे बी अ लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। ओके, आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके प्रॉपरली रिजॉल्व करने के बजाय यू आर जस्ट गोना स्वीप इट अंडर द रग, एंड वो प्रॉब्लम्स बार बार वापस आएंगी। यू नीड टू यूज़ दिस वाला एनर्जी, जो आपकी हीलिंग वाली एनर्जी है ना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। फॉरगिवनेस सीखो आप, चाहे आप वो हो जिसको चोट लगी है, चाहे वो हो जो चोट दे रहा है दूसरे को, आपको फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, be in this energy in everything, this loving, heart opening energy for everything. रिलेशनशिप को लेके आई सी यू बीइंग सुपर इंट्यूटिव, सुपर केयरिंग, सुपर स्वीट, सुपर इमोशनल, राइट। द क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। थोड़ा ये इशू होता है क्वीन ऑफ कप्स का कि अगर कोई बात बुरी लग जाए तो फिर वो भूलते नहीं है। अब ये नहीं कि आप जाके लड़ना शुरू कर दो, फिर भूलोगे नहीं। ट्राई टू ऑल्सो, ठीक है आपने माफ़ कर दिया, यू मूव्ड ऑन, यू मेकिंग थिंग्स सीम नॉर्मल, बट ट्राई ऑल्सो कि आप भूल भी जाओ। गलतियाँ सबसे होती है, आई एम श्योर आपसे भी होता है। ओवरऑल इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू your money and when it comes to your profession or job, I'm seeing issues। ये definitely external issues है, राइट। दूसरे लोगों से, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है या फिर एम्प्लॉयज़ है या फिर कॉलीग्स है या फिर सुपीरियर्स है, व्हाटएवर इट इज़, यहाँ पे मुझे ये इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। एंड लेट्स ट्राई टू गो डीपर इनटू दिस विद द सेम टाइम। ये इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? हर्मिट कार्ड का पहले देखते हैं। Why the secrecy? Okay, you are trying to achieve something really quickly, हाँ, money wise। अब ये देखो रिवर्स आ गया। You're trying to achieve something really quickly, money wise। शायद आप ट्रैवल तो डेफिनेटली आप अपने मनी के लिए ट्रैवल ज़रूर करना चाहेंगे, बट क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली रिवर्स आ गया, जो आपकी सेविंग्स है उसमें हिट आएगा। सो बी अ बिट केयरफुल अबाउट दैट। ओके, अब भी आप शुरू तो करोगे ऐसे, हर्मिट कार्ड में शुरू तो करोगे, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे अकेले में रहना है, बट देन मे बी आफ्टर और ड्यूरिंग योर ट्रैवल प्लान्स आप इवेंचुअली आपके जो भी सीक्रेट्स है वो बाहर निकल के आ ही जाएंगे। दे विल डेफिनेटली कम आउट। दूसरा ये देख लेते हैं आपके प्रोफेशन या जॉब में क्या चल रहा है, इज गोइंग ऑन हियर। क्लैरिटी फॉर दिस। ओह, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, हाँ, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आपको खुद ही नहीं पता आपका सोल पर्पस क्या है। All right, a lot of confusion. Okay, it might seem like कि कुछ लोग आपके friends है, family है, they're very sweet to you in the office, you know, हम सब परिवार है, वो वाली energy लेकर आएंगे, but you are not going to be trusting of them. You're not going to be trusting of them. Even though ये fight आपकी होगी, you would still want कि एक family वाला vibe हो। So there's, I don't think कि आपको पहले इसमें जाना चाहिए, and I don't think कि आपको इतना suspicious होना चाहिए। Just jump into this feeling. It's always a good feeling to have. Let's check from the other deck and let's try to get deeper into your energy. Gemini.
जुलाई 2025, मिथुन राशि, मिथुन लग्न। Number 1, card number 2, and card number 3. See, अगर जनरली आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस में मैं जाऊँ, just understanding Gemini, because you're a Gemini, you already know what a Gemini is like, and I'm sorry for saying Gemini so many times. एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, थॉट प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गोइंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, पता सारी चीज़ों के बारे में, पर मे भी शायद इतनी डिटेल में नहीं जा पाते हैं। और लाइफ भी थोड़ा आप ऐसे ही लिव करते हैं कि मैंने जितना मुझे सुनना था मैंने सुन लिया, उसके आगे मैंने जजमेंट कर दिया, मैंने उसके आगे अपनी बातें बोल दी, राइट। आई डोंट हैव द पेशेंस टू रियली गेट डीप इनटू अ कॉन्वर्सेशन। सो इफ़ आई लुक एट इट इन दैट वे, इवन दो बहुत ही स्पिरिचुअल सा आपके कार्ड्स आ रहे हैं, इवन दो आपके बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है, इवन दो यहाँ पे आपका हैंगमैन भी आया है, ओके, एंड सन कार्ड भी आया है, विच फॉर मी इट शोज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एट द एंड ऑफ इट आपका एम्परर कार्ड भी आया है, ओके। बिकॉज यू आर एन एयर साइन एंड ह्यूमन साइन भी हो, तो फिर इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी तो दिखती ही है और दिखाओगे ही, राइट। आई सी यू बीइंग सुपर कॉन्फिडेंट एंड मे बी इन योर ईगो, जो मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स में भी दिखा था, बट देन इवेंचुअली यू विल लर्न कि आई हैव टू लेट इट गो, आई हैव टू लेट इट गो, आई हैव टू सरेंडर। हर चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वो करने के बाद भी आप फिर से वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि भाई नो नो नो, दिस इज़ टू मच सरेंडर। नहीं, आई हैव टू गेट इन टू माई मोर मैस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी, एंड जेमिनी इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, इट्स एन ऑड साइन, ओके। सो you're gonna go back to this. I wonder ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है आपके साथ, मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, स्पिरिचुअल टू ईगोइस्टिक, टू स्पिरिचुअल टू ईगोइस्टिक, what's happening with you guys? Okay, alright, I see कि see again sun card has come here, again 4 of Pentacles has come here. I see that you feel you're going to be backstabbed and आपके secrets शायद reveal होने वाले हैं, your secrets are going to be revealed. वो secrets इतने भी कुछ impactful नहीं है that they're anything bad, because at the end there's a sun card, but yeah, this I think आपके ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चलने वाला है इस महीने, जुलाई के महीने में, जिसके वजह से ईगो इशू है, जिसके वजह से आपको आपकी कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी, जिसके वजह से यू आर गोइंग टू से नो, आई वांट टू बी इन माई ईगो, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, मैं फटाफट से ग्रो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ अपने करियर में, दैट इज़ माई एम, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेट्स गेट सम गाइडेंस फॉर यू। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आपका डेफिनेटली बहुत ही हाई होगा, वो स्टार कार्ड में भी था कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा, सोल से कनेक्शन है। जब भी दिस इज़ वाई से मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, केतु इज़ नॉट ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन आपका आता है आपके सोल से, आपकी आत्मा से, वो सूर्य होता है, सूर्य कारक होता है आपके सोल का, आपके इंट्यूशन का। सो ये जो आजकल लोग बोल रहे हैं इट्स बियॉन्ड मी, आई डोंट नो वेयर दे आर इवन गेटिंग देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, आपका सोल लेवल पे एक्टिवेशन होगा। यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। माइंड को छुट्टी कर दो, इंट्यूशन को पूरी तरीके से सुनो, एंड इट विल गाइड यू राइट, इट विल गाइड यू राइट, ऑलराइट। सो मेनी ब्लेसिंग्स आर अपॉन यू जेमिनी, कंग्रेचुलेशंस टू यू, हैव फन विद दैट, you know, enjoy your success and health, you've been working hard. Now let's go on to Cancer, कर्क राशि, कर्क लगन, my dear water signs। ये लोग शफल ही नहीं होना चाहते हैं।
राशि कर्क लगन का जुलाई के लिए what's your archetype? The pilgrim. All right, so you know, off the bat it looks like आप definitely travel कर रहे हैं. Most definitely you are traveling, and most likely it will be to a spiritual place, एक तीर्थ की तरह. That's super nice. I mean, केतु मार्स का ही टाइम है. जुलाई केतु का नंबर है 2025 इज़ मार्स का नंबर, एंड 2025 का 25 अगर आप अलग से ले लेते हैं देन उसमें ही वापस केतु आता है. सो एज पर मी इज़ केतु मार्स, एंड इट इज़ नेसेसरी कि जब मेंटली साइकोलॉजिकली हमारा डिसबैलेंस होता है, इट इज़ नेसेसरी टू गो फॉर अ पिलग्रिमेज. सो गुड जॉब कैंसर साइन, कैंसर ascendant that you're doing that. Let's see आपके health, wealth, career, profession, business, and आपका relationship. Oh, okay. Health is fantastic. Sun card, fantastic, super good, super healthy, good healthy stomach. थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, पर अदरवाइज स्टिल गुड हेल्दी स्टमक, राइट. And having a good healthy stomach means having a good career also, being good in that. So you're going to be super happy, you're going to be in a childlike energy ज़्यादा होगी आपके अंदर. Wealth, I see you trying to maybe have another source of income, right? Whether it's getting rent or some part-time work, part-time thing. I think ये शायद मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए भी आया था. Career, profession, business, the king of wands. If there is a promotion you are expecting, then it's very likely to happen. If it's not a promotion, तो आपका नाम आगे recommend होने वाला है. Maybe you're going to take an exam, and maybe through that way you're going to rise in whatever way you're going to rise. And even if you don't rise, आपकी personality ही ऐसी होगी that you are going to be in a leadership position, and you're going to be taking action as well. सिर्फ यही नहीं कि आप दूसरों को बोलोगे काम करने के लिए, आप खुद भी करोगे. ओवरवर्क भी कर सकते हो आप अपने आप को, एंड इसके वजह से आप दूसरों को भी ज़्यादा पुश कर सकते हो कि इफ़ आई एम एबल टू डू सो मच वर्क, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो. सब लोगों के पास आपकी जैसी पॉजिटिव एनर्जी हेल्थ वाइज नहीं होगी. ओके, so be a little loving with that. Now the most important card for you is always relationship, because you guys are emotional, right? Water sign है. Relationship in the month of July, डिप्रेशन का इशू हो सकता है. आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा. फीलिंग्स मैं फीलिंग्स कुछ फील कर पा रही हूँ अपनी. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट. शायद मुझे अपने दिमाग का जितना आप दिमाग का सुनोगे ना, उतना ही आपका फ़ायदा नहीं होगा. फॉरगेट अबाउट योर ब्रेन. यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी है. गेट इनटू योर फीलिंग्स. अगर आंखों में पट्टी भी बंदी है, कोई आपको कुछ और कह रहा है, गैसलाइट कर रहा है, सुनने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. इट कैन ऑल्सो बी फ्रेंड्स, इट कैन ऑल्सो बी फैमिली, व्हाटएवर इट इज़. यू विल ऑल्सो फील कि कोई अथॉरिटी में है, या फिर आपने शायद किसी को अथॉरिटी के प्लेस पे रखा हुआ है, एंड वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं. एंड मे बी यू आर नॉट इवन टॉकिंग टू दैट पर्सन, फिर भी यू फील कंट्रोल्ड. सो मे बी यू बिन हियरिंग, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते. आपको क्या ज़रूरत है सुनने की? यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ ना. यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. यू गेट आउट ऑफ दिस डायनामिक. इफ़ यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, अगर वो दूसरा इंसान आपका भला भी चाह रहा है, अगर वो दूसरा इंसान आपसे प्यार भी कर रहा है, यू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस डायनामिक. और डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू नीड सम थेरेपी, इफ़ यू नीड सम गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप इशूज़, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक इट. ओके, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक इट. बट जस्ट रिमेंबर, हम कैदी नहीं हैं. एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस हम कैदी नहीं हैं. सो यू कैन बी फ्री, यू कैन मूव, you can think, and you can make your own decisions. Do not feel कि दूसरा इंसान ही आपके लिए आपके सारे decisions लेगा. Okay, let's get into a deeper reading. I want to see what's going on with your relationship. शायद आप अपने वर्क के लिए भी कहीं ट्रैवल करें. Maybe a hot, humid place. What's going on with the relationship?
money issue in the relationship, huh? Balance issue in the relationship, career पे ज़्यादा ध्यान दो, money issue, full on money issue, 2 of pentacles, 4 of pentacles. Let me check from the original deck what's going on. What's going on with the relationships? Money issue, yeah, money issue, work issue. आप जो अपने वर्क पे इतना फोकस करोगे ना, that is going to start creating issues in your relationship. Maybe हो सकता है one person is earning more than the other. Maybe that is the issue. Maybe शायद आपके पैसे खर्च कर दिए गए और आपको बताया भी नहीं. That can also be an issue. Whatever it is, it's related to money. And it's also related to work and miscommunications around it. Right? Here again the 2 of pentacles जो आप ही का प्लान है कि आप अपने पैसे थोड़े से बढ़ा दें. You want to increase your money so that you can increase your savings. It's not happening. शायद आपके पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रही, you're just getting stuck. Maybe you're thinking कि रिलेशनशिप में आने से पहले मैं अपने फाइनेंसेस को सही कर दूँ, पर वो हो नहीं रहा है. It's not happening. Okay, so in the month of July, forget about relationship. Look at you. Look how good your career is going. Look how good your health is going. Look कि आप कहीं पे जाने वालों किसी तीर्थ वगैरह के लिए. This is gonna give you the peace of mind that you need to deal with your relationship issue, जहाँ पे आप ऐसे बंधे हुए और suffocated महसूस करेंगे. Cancerians, you're too nice to be stuck like this. Always relationships with you. Oh, Cancerians. No worries. कोई दिक्कत नहीं है. The rest of us, we're here for your support. Okay, let's see even deeper if there is any general thing that the cards want to say to you. Any other secrets that might want to be revealed for Cancer, July 2025. Card 1, card 2, yeah. जो आपका जो लीडरशिप वाला रोल होगा ना, I don't really think it's leadership. Okay, I think we're going back to relationship, money and business, or relationship and job, whether it's your job or your partner's job, जिसकी वजह से arguments and conflicts फिर से आते हुए मुझे दिख रहे हैं. Twice the 5 of wands has come up. Okay, and I think the eventual decision will be let's just start a business. जो मुझे आपका side hustle आते हुए दिख रहा था, थोड़ा side income आते हुए दिख रहा था, पर आपको अपने आप को या अपने पार्टनर को मनी से तोलने की ज़रूरत नहीं है. मोर देन मनी आपको कैरेक्टर से तोलना चाहिए. सो but I mean, I'm no one to judge. It's your journey. Whatever is going to happen. Best of luck to you on that. Everything else is good for you. Which I mean is a great thing. ये प्रेफर कर लो आप भैया, ये प्रेफर कर लो कहीं तीर्थ वीर्थ पे चले जाओ. तीर्थ पे नहीं जा सकते, कम से कम मंदिर चले जाओ. मौसम भी मानसून का ही है ना. What is the guidance for you? No. Alright. The guidance is just no. Let's see what is it saying no for, but I think I already know. Let me not put my judgment here. Okay. कुछ महीनों में आपकी चीज़ें हो जाएंगी. So when it comes to the relationship thing, if you're thinking कि क्या जुलाई के महीने में इम्प्रूवमेंट होगा, क्या हमारे फाइनेंसेस इन ऑर्डर होंगे एंड वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हमारे रिजॉल्व होंगे, इन द मंथ ऑफ जुलाई इट्स कमिंग अप एज नो. It will take a few months. Everything else is good, Cancer. So we're golden that way.